بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ پاک فوج کے افسران فیک نیوز پر کان نہ دھریں اور ملک کے سیاسی جھگڑوں سے دور رہیں، جمہوری اداروں کا احترام کریں۔ پاک فوج کسی بھی ملک یا گروہ کو اس بات کی اجازت نہیں دے گی کہ وہ پاکستان کو سیاسی یا معاشی طور پر عدم استحکام کا شکار کرے۔ خطے کے تنازعات کا حل بات چیت سے ہونا چاہیے، جنگ سے صرف تباہی آئے گی۔ Good soldier, always remain focused on your job. Don't get distracted by fake news and political wrangling in the country. Respect the democratic institutions and be always ready to defend the territorial integrity, sovereignty and the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan with your life. And finally, always remain alert and prepared to respond to and defeat all intrigues and conspiracies hatched against our country with iron fist. The message is clear. The armed forces, with the support of our citizens, will never allow any country, group or force to politically or economically destabilize Pakistan. We are trying our best to break the political logjam which has denied the countries of South Asia to move forward and resolve all regional and bilateral issues in a peaceful and dignified manner. People of South Asia, like the rest of the world, deserve prosperity and better living conditions. This can only happen with sustained economic growth. Therefore, we must strive hard to keep the flames of war away from the region. We must give peace a chance by developing a mechanism to resolve all our bilateral issues peacefully. Moreover, as opposed to fighting each other, we should collectively fight hunger, poverty, illiteracy, population explosion, climate change and disease. The world has changed. دیگر خبریں شامل کریں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ نئی آڈیو میں عمران خان نے خود 5 بندے خریدنے کا اعتراف کیا ہے۔ سازش کا جھوٹا بیانیہ گھڑا گیا۔ مریم نواز کی بریت کو NRO کہنا قابل مذمت ہے۔ عمران خان بتائیں علیمہ خان کو دبئی اور امریکہ میں اثاثے چھپانے پر NRO کس نے دیا؟ عمران نیازی اپنے دور میں دیے گئے NROs کا حساب دیں، وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ یہ کہنا کہ مریم نواز شریف کو NRO ملا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بقول عمران نیازی، اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ گھٹیا اور قابل مذمت کوئی بات ہو نہیں سکتی۔ محترمہ علیمہ خان کو FBI نے جو ان کو مس ڈیکلیریشن جو ان کے اثاثے دبئی میں اور امریکہ میں چھپائے ہوئے تھے، وہ NRO میں نے تو نہیں دلوایا تھا ان کو۔ عمران نیازی، آپ کو قوم کو اب جواب دینا ہے۔ میں حقائق سے ثابت کر چکا ہوں کہ آپ پاکستان نہیں دنیا میں سب سے زیادہ آپ ایک فراڈ کرنے والے، جھوٹ بولنے والے ایک شخص ہیں۔ جو آڈیوز اور آئی ہیں اس میں آپ نے دیکھ لیا کس طرح عمران خان نیازی کہتے ہیں کہ میں نے 5 بندے خرید لیے ہیں۔ بلوچستان میں بارشوں اور سیلاب کے بعد متعدد اضلاع میں 800 سے زائد مراکز صحت اور اسپتال متاثر ہوئے۔ عوام کو صحت کی سہولیات کی عدم فراہمی کے باعث مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ دنیا نیوز ابرار احمد سے۔ جی ہاں، بالکل بلوچستان میں 2 ماہ تک مونسون کی شدید بارشوں کے بعد جو ہے وہ صوبے میں شدید نقصان پہنچا۔ جہاں پر دیگر املاک جو ہیں ان کو نقصان پہنچا، وہاں پر جو ہے ہیلتھ فیسلٹیز جو ہیں وہ بھی کئی جگہ پر متاثر ہوئیں۔ اس علاقے کو جو ہے وہ ہیلتھ فیسلٹیز اب دستیاب نہیں ہیں۔ یہاں پر جو یہاں کے جو شہری ہیں انہیں یہاں سے علاج معالجے کے لیے دیگر علاقوں کو جانا پڑتا ہے۔ میرے ساتھ شہری موجود ہیں، ہم ذرا ان سے پوچھتے ہیں اس ڈسپنسری کے حوالے سے۔ اس ڈسپنسری کو تقریباً بہت نقصان پہنچا ہوا ہے۔ 2 مہینوں سے جو سیلاب آ رہا ہے یہاں پہ، اس کے اندر پانی پانی آیا ہوا ہے اور سارے ڈیمیج ہو چکا ہے۔ ابھی استعمال ہونے کے قابل ہی نہیں ہے ہاسپٹل۔ جی ہاں، ان کا کہنا ہے کہ شدید بارشوں کے بعد جو سیلابی پانی یہاں پر آیا تھا اس کے اندر داخل ہوا، جس کی وجہ سے اب یہ جو ہے ڈسپنسری بالکل آپریشنل نہیں ہے اور انہیں علاج معالجے کے لیے یہاں سے دور جانا پڑتا ہے۔ پتہ نہیں اور کتنا یہاں پر ٹائم لگے گا ہیلتھ فیسلٹیز کو یہاں پر دوبارہ بحال ہونے میں۔ جی
माली मुश्किलात का शिकार खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तरक्याती बजट पर 20% कट लगाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा का तरक्याती बजट 418 अरब रुपए से ज़ायद है। कटौती से मुतादिद तरक्याती मंसूबे भी रुक सकते हैं। मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर आबिद हमीद हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद, कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रुक सकते हैं? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है इस वक्त शदीद माली मुश्किलात का शिकार है। ये सिलसिला कुछ अर्सा कबल से चल रहा था और जो सैलाब आया उसके बाद जो उसकी तबाहकारी हुई है तो उससे सूबाई हुकूमत की मुश्किलात बड़ी हैं। इस वक्त जो नई असेसमेंट जो सूबाई हुकूमत के पास आई है मुख्तलिफ महकमों की जानिब से, उसमें बताया गया है कि 130 अरब रुपए का वो जो है वो सूबे को नुकसान हुआ है सैलाब की वजह से, जिसमें 80 अरब रुपए सिर्फ सैलाब जो सरकारी इलाके उनको नुकसान पहुँचा है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि सूबाई हुकूमत जो है उसको पैसों की अशद ज़रूरत है। विफाक के साथ हालात जो है वो बेहतर और मामूल के मुताबिक नहीं चल रहे, जिसकी वजह से उन्हें जो है वो तरक्याती बजट पर कट लगाने पर गौर करना शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से महकमा मनसूबाबंदी ने जो है वो अपनी तजावीज़ दी हैं, जिन्होंने कहा है कि बजट पर जो 418 अरब रुपए तरक्याती बजट है उसके पर मुकम्मल कट लिया जाए या उसको मुंजमद किया जाए, लेकिन सूबाई हुकूमत इन तजावीज़ को रद्द कर दिया है और फिल वक्त 20% जो है वो कट लगाने का फैसला किया गया है। सूबाई हुकूमत की कोशिश है कि कट सिर्फ उन मनसूबों पर लगाया जाए जिससे अवामी और फलाही मनसूबे मुतासिर ना हों। इस हवाले से जो है वो मज़ीद तजावीज़ भी जो है इन महकमों से तलब की गई हैं। दोबारा से जो असेसमेंट है उसका भी कहा गया है और जो आइंदा तलब की गई है। वेलकम बैक। अराकीन पार्लियामेंट के गिरफ्तारियां रोकने से मुताल्लिक अहम बिल सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा। मुजव्वज़ा बिल के मुताबिक किसी रुकन को गिरफ्तार करने से कबल वजूहात स्पीकर या चेयरमैन को बताना लाजिम होगा। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ वकार अली सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकार, बताइएगा इस बिल का मतन। अरकान पार्लियामेंट की किसी भी इल्ज़ाम में जो गिरफ्तारी है उसको मुश्किल तरीन बनाने से मुतल्लिक जो बिल है वो सेनेट सेक्रेटेरिएट में जो है वो जमा करा दिया गया है। निजी अरकान के दिन के तौर पर ये जो बिल है ये पेश किया जाएगा, जबकि पीपल्स पार्टी के जो सेनेटर है रज़ा रब्बानी और जो उनकी जानिब से ये बिल जो है वो जमा कराया गया, जिसमें जो मुजव्वज़ा बिल है उसमें कहा गया कि किसी भी रुकन को गिरफ्तार करने से कबल जो है वो स्पीकर और जो चेयरमैन सेनेट है उनको वजूहात बताना होंगी, जबकि इस इजलास के शुरू होने से 8 दिन कबल किसी भी रुकन को जो है वो गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। जो गिरफ्तार अरकान है वो इजलास के 15 दिन कबल जो है वो उनके प्रोडक्शन आर्डर्स जो है वो जारी होंगे, जबकि वही प्रोडक्शन आर्डर जो इजलास के ख़त्म होने के 15 दिन बाद तक जो है वो कारआमद होंगे। इसके अलावा जो कायमा कमेटियों के इजलास होंगे उसमें भी अरकान की शिरकत लाजमी बनाने के लिए जो है वो प्रोडक्शन आर्डर जो है वो जारी होंगे, जबकि जैसे कि गुज़श्ता रोज़ जो PTI के सेनेटर्स थे उनकी जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया कि सैफुल्लाह नियाज़ी को पार्लियामेंट के खाते से जो है वो गिरफ्तार किया गया। तो जो मुजव्वज़ा बिल है उसमें ये शिक भी शामिल की गई है कि किसी भी रुकन को स्पीकर या जो चेयरमैन सेनेट है उनकी मंजूरी के बगैर जो है वो उनको वजूहात बताए बगैर जो है वो पार्लियामेंट के खाते से बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। और अब आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर में 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले से तबाहकारियों से बचाव और आगाही के लिए वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों ने, शहरियों ने और मुख्तलिफ जो रफ़ाई इदारे हैं उनके अफराद ने शिरकत की। इसी पर रिपोर्ट करेंगे तकीउल हसन। मुजफ्फराबाद में मुख्तलिफ इमदादी महकमों और इदारों के नुमाइंदों समेत स्कूल के बच्चों ने ज़लज़ले समेत कुदरती आफात से निपटने के लिए CMH रोड पर आगाही वॉक की। शुरका का कहना था कि आज़ाद कश्मीर में ज़लज़लों और मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में आने वाली आफात से निपटने के लिए तैयारी वक्त की अहम जरूरत है। 8 अक्टूबर के ज़लज़ले में बहुत ज्यादा तबाही हुई है और उसका मेन रीजन यही था कि लोगों के अंदर ये अवेयरनेस नहीं थी कि खतरात से कैसे निपटना है। खतरात को आने से रोक नहीं सकते, लेकिन खतरात का सामना कर सकते हैं, उसके लिए तैयार रह सकते हैं और मोहताज रह सकते हैं। चाइना में जिस तरह, जापान में जिस तरह के हाउस बने हुए, अगर हम उस पर भी अमल पैरा हो जाए ना कि ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, जबकि ये कि हमारे लिए वही स्टोरी हो जाएगी कि जो कल के खुदा न खास्ता कोई आफत आए तो इतना नुकसान नहीं होता। इस मौके पर शुरका का कहना था कि आज़ाद कश्मीर में 17 साल पहले 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले में आफत से निपटने के लिए इमदादी निज़ाम और आगाही न होने की वजह से 46,000 से जायद इंसानी जानों का ज़िया हुआ। 2005 को जो ज़लज़ला आया था क़यामत खेज़, उसमें तो हमारे पास ज़ीरो हमारे पास स्ट्रेंथ थी। तैयारी जब भी होती है वसाइल से होती है।
तो इंशाल्लाह ताला जो हमारे मदूद वसाइल हैं उनको हमने बुरे कार लाते हुए अपने डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन भी किया है, बल्कि हमारा जो SDMA का उसमें हमारे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई है, उसमें रिलीफ है, रेस्क्यू है, 1122 है। अभी मैंने 16 अरब रुपए का प्रोजेक्ट बनाया है, कॉन्सेप्ट पेपर भेजा है PND को, और पाकिस्तान में भी हमने उनके लिए रिक्वेस्ट की है। शुरका ने माजी के तजुर्बात से सीखते हुए मुस्तकबिल में आने वाली नागहानी आफात के लिए चौकन्ना रहने पर भी जोर दिया। आज के दिन को कौमी सतह पर कुदरती आफात से निपटने के लिए भरपूर तैयारी के दिन के तौर पर भी मनाया जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ तकीउल हसन, दुनिया न्यूज़, मुजफ्फराबाद। मौसम की दुनिया में आपको खुशामदीद कहेंगे और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों का मौसम कैसा है ये आपको बताएंगे कि किस शहर में क्या दर्जा हरारत हो सकता है और क्या सूरत हाल है। तो मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल आपको बताएं और क्या सूरत हाल रही वो आपको अपडेट करेंगे शहर इक़्तिदार में, जहाँ पर दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। उसके बाद रुख कर लेते हैं लाहौर का। लाहौर में मौसम आज कदरे गर्म है और 36 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर मौसम रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पेशावर का रुख कर लेते हैं, क्योंकि पेशावर और इस्लामाबाद में ज़्यादा फासला नहीं है तो मौसम में भी ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। और अगर हम कोयटा की बात करें तो कोयटा का मौसम भी 31 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। आखिरी सूबाई दारुल हुकूमत यानी कि हम शहर कायद कराची की बात करेंगे। कराची के मौसम आप देख सकते हैं कि जी यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी है, बाकी तमाम सूबाई दारुल हुकूमतों से 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो मुख्तलिफ शहरों की जो सूरत डिटेल से आप तक पहुँचाते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की बात करेंगे। कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको बताते हैं कि क्या इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कम से कम जी 18 डिग्री सेंटीग्रेड रात के वक्त अच्छा मौसम है यहाँ पे जी, और दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स ये सबसे अहम चीज़ है और ये हर गुजरते दिन के साथ हम देख रहे हैं कि इसमें इजाफा होता चला जा रहा है। इस्लामाबाद की आबोहवा 129 जी, मॉडरेट इसको हम कह सकते हैं, लेकिन जो सेंसिटिव अफराद हैं वो मास्क का इस्तेमाल करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि एलर्जीज का इशू हो जाता है ऐसे मौसम में, और इस्लामाबाद में खुसूसन एलर्जी वैसे ही ज़्यादा होती है। ह्यूमिडिटी 48% और हवा की रफ्तार की बात करें तो वो है 13 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से। इस्लामाबाद से आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं जी अब लाहौर का। कम से कम 21 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है और ज़्यादा से ज़्यादा आप देख सकते हैं कि जी 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। एयर क्वालिटी इंडेक्स ये सबसे बड़ा कंसर्न है और स्मोक की भी जो है इस हवाले से अब इक़दाम भी उठाने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं, मीटिंग्स भी बुला ली गई हैं, लेकिन 169 वेरी अनहेल्दी है और सेंसिटिव नहीं, ये हेल्दी लोगों के लिए भी नुकसानदेह है। ह्यूमिडिटी है 81% और हवा की रफ्तार है 1 किलोमीटर फी घंटा। आगे बढ़ जाते हैं जी, अब आगे जी शहर कायद और कम से कम 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है और ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमकेगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स कोई बहुत बेहतर नहीं है, लाहौर से थोड़ा सा कम है, 157 है, ये भी अनहेल्दी है। और ह्यूमिडिटी 51% और हवा की अगर हम बात करें तो 10 किलोमीटर फी घंटा। आगे आ जाते हैं जी, अब पेशावर का रुख कर लेते हैं। पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है और कम से कम बात करें तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। एयर क्वालिटी इंडेक्स वही कंसर्न है, वही सूरत हाल है तमाम शहरों की, 182 वेरी अनहेल्दी। हमें इक़दाम करने होंगे, हमें दरख्त लगाने होंगे। ह्यूमिडिटी है 62% और हवा की रफ्तार है 8 किलोमीटर फी आवर। अच्छा जी, आगे बढ़ जाते हैं और कोयटा का रुख कर लेते हैं। कोयटा में जो रात है वो बड़ी ठंडी है और कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। दिन के वक्त मैक्सिमम 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स चले जी फाइनली कहीं पर तो बेहतर है और 55 इसको हम मॉडरेट कह सकते हैं। बाकी शहरों से बहुत अच्छी सूरत हाल है, बहुत अच्छी सूरत हाल है यहाँ पर। और ह्यूमिडिटी है 26 और हवा की रफ्तार की अगर हम बात करें तो वो है 3 किलोमीटर पर आवर। तो नाज़रीन, ये तो थी आज की मौसम की सूरत हाल।